The subject of sentence is each, either, neither, every, anyone, someone, everybody, anybody, nobody, no one, everyone, anyone, everything, something, nothing, anything, then singular verb should be used. अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट each, every, either, neither, someone, everyone, etc. हो तो हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, everybody knows that. यहाँ सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट everybody है, इसलिए सिंगुलर वर्ब knows का यूज हुआ है. Similarly, we should say he proposed both the girls, but either has responded. Also note, singular verb is used after each of, every of, either of, neither of, every one of, one of, etc. But we use plural noun or pronoun after each of, every of, either of, etc. Each of, either of, neither of, every one of, etc. के बाद plural noun या pronoun यूज होता है, लेकिन इनके बाद हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नाइदर ऑफ देम लुक्स हैप्पी. यहाँ नाइदर ऑफ के बाद हमने प्लूरल प्रोनाउन देम का यूज करा है, वही सिंगुलर वर्ब लुक्स का यूज करा है. सिमिलरली वी विल से आइदर ऑफ द गर्ल्स हैज टॉप्ड इन द एग्जाम. ये रूल काफी आसान और इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना चाहिए. अब नेक्स्ट रूल देखते हैं. आफ्टर बोथ, बोथ ऑफ, फ्यू, फ्यू ऑफ, अ फ्यू, मैनी, मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी, a number of, a large number, plural noun and plural verb is used. Both, both of, many, many of, etc. के बाद plural noun और plural verb का यूज होता है. For example, many singers live in Mumbai. A number of suggestions were made. दोनों सेंटेंस में plural noun और plural verb का यूज हुआ है. But we usually get confused when instead of a number of, the number of is used, and in place of many, many a is used. Because after many a and both singular noun and singular verb is used. Like, many a boy has not done his homework. Here we used singular verb and singular noun. मैनी ए और मैनी एन के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, वही द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है. फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ कार्स इज इंक्रीजिंग इन इंडिया. अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ में हमें डिफरेंस को याद रखना चाहिए. ये दोनों रूल काफी इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से समझ लें. अब नेक्स्ट रूल देखते हैं. रूल 7. I have already discussed countable and uncountable nouns in my previous videos. अभी इन पर बेस्ड एक रूल देख लेते हैं. If countable noun is used after all of, some of, most of, lots of, a lot of, plenty of, enough, 1/3 of, 2/3 of, etc. Then plural noun and plural verb is used. But if uncountable noun is used after all of, some of, etc., we use singular verb. अगर all of, some of, etc. के बाद काउंटेबल नाउन आता है तो वह प्लूरल फॉर्म में यूज होता है. साथ ही हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं. किंतु अगर इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन आते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं. ध्यान रहे, अनकाउंटेबल नाउन का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है. ऐसे केसेस में गलती से भी अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनाने की कोशिश ना करें.
अब इस रूल से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ऑल द वाटर वॉज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ शेक। यहाँ वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। बट इफ वी से ऑल द बॉयज वर हैविंग शेक, वी विल यूज प्लूरल वर्ब एज काउंटेबल नाउन बॉय इज यूज्ड। सिमिलरली, हाफ ऑफ माई आंसर्स वर रॉन्ग। आप इस रूल को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। Rule 8. After more than one singular noun and singular verb is used. But if construction is like this, more plus plural noun plus than one, then it is followed by plural verb. More than one के बाद singular noun और singular verb का यूज होता है, लेकिन अगर construction more plus plural noun plus than one हो तो plural verb का यूज होता है। For example, more than one boy was killed there, but more boys than one were killed there. आप दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे तो आप इस रूल को आसानी से समझ लेंगे। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। If there or if is used as introductory subject, then the verb is decided according to noun. For singular noun, singular verb is used, and for plural noun, plural verb is used. अगर there या if का यूज सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हो तो हमें verb का यूज सब्जेक्ट के अनुसार करना चाहिए। ऐसे केसेस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, वही अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। यह देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन बड़ा आसान है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, देयर वॉज अ रैट इन द रूम, बट देयर वर रैट्स इन द रूम। फर्स्ट सेंटेंस में हमने देयर का यूज सिंगल रैट बताने के लिए करा, इसलिए हमने देयर वॉज का यूज करा। किंतु दूसरे सेंटेंस में हमने देयर का यूज कई सारे रैट्स को दर्शाने के लिए करा, इसलिए हमने देयर वर का यूज करा। ध्यान रहे, देयर के बाद वर्ब का यूज सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ये रूल्स देखने में बहुत ज़्यादा हैं बट बहुत आसान भी हैं। आप इन रूल्स को इजीली याद कर सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि इन रूल्स से रिलेटेड एक टेबल या चार्ट दे दूं, जिसे आप अपने रूम में स्टिक करके रोज रिवाइज कर सकें। इन रूल्स से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आप इन्हें लाइटली ना लें। अभी कुछ रूल्स और बचे हैं, जल्दी से उन्हें भी डिस्कस कर लेती हूँ।